फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 9th Maths Part 1, that means Algebras 5th chapter, linear equations in two variables. In previous standard we studied the equations, linear equation in one variable, and you know how to solve that linear equation in one variable. For example, this m plus 3 is equal to 5, then find the value of m. So we get m is equal to 5, this 3 becomes minus 3, so 5 minus 3, m is equal to 2. So in this way we have solved that equations in 8th standard. हम लोगों ने 8th में ये linear equations in one variable ये part पढ़ा है. Now we are going to study linear equations in two variable. दो variable एक ही equation में आएगा, इसको बोलते हैं linear equation in two variable. Linear means the power of that variable is 1. If we consider sum of two numbers is 18 and difference of two numbers is 2, then how to write? To let the two numbers be x and y. अगर x y दो नंबर हम लोग लेते हैं then we can write this sum of the two numbers is 18, मतलब x plus y is equal to 18. तो ये हो गया linear equation in two variable. linear मतलब x का और y का जो इंडेक्स है ये 1 है. यहाँ पे x is greater number minus y is smaller number, their difference is 2. तो this is the linear equation in two variables x and y, and the power of both the variables is 1, index of both the variable is 1, then this equation is called the linear equation in two variable. इसमें दो conditions है. first क्या देखा हम लोगों ने? it contains two variables, यानी a b x y anything contains two variables, and second thing, power of each variable is 1. power means index of each variable is 1. इसका power 1 होना चाहिए. then it is called linear equations in two variable. so this equation is called linear equation in two variable. this is also called linear equation in two variable. now our next point is simultaneous equation. simultaneous का मतलब होता है एक बार, दो चीज एक बार, मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोग एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए बोलते हैं simultaneous equations. if we consider two linear equations in two variables simultaneously, एक बार एक साथ, then the equations are called simultaneous equations. so when we consider the two equations in two linear equations in two variable at the same time, when we consider two linear equations in two variables at the same time, मतलब simultaneously. at the same time का मतलब क्या होता है? simultaneously. then the equations are called simultaneous equations. now in this chapter we have to solve these simultaneous equations using different methods. so there are two methods to solve this simultaneous equation. उसके लिए दो मेथड है, एक है elimination method और दूसरा है substitution method. so let us see that two methods, elimination method and substitution method, of solving that simultaneous equations. First one is
elimination method of solving simultaneous equation. इफ यू कंसिडर टू इक्वेशंस, यहाँ पे हम लोग एक दो इक्वेशन कंसिडर करते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. राइट द नंबर ऑफ द इक्वेशन इन रोमन एंड हियर दिस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट मतलब उसको एक गायब करना वहां से. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये दो वेरिएबल है x एंड y, उसमें से एक वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. और जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल. सो इन एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट वी हैव टू सी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, उसमें से किसका कोएफिशिएंट सेम है ये पहले हम लोग को देखना है. तो x का भी कोएफिशिएंट सेम है, y का भी कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अपने लिए ओपन है. उसके बाद सेकंड स्टेप हम लोग को देखना है. फर्स्ट स्टेप क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विच वेरिएबल आर इक्वल. ये पहला स्टेप है, कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है ये पहले देखना है. अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा. बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर टू द इक्वेशन वी कैन मेक द कोएफिशिएंट इक्वल. उसके बाद उनका साइन देखो, ये प्लस प्लस यानी सेम साइन रहेगा तो वो इक्वेशन हम लोग को माइनस करना है, और डिफरेंट प्लस माइनस डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करना. यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे. y एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग. सो एडिंग, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट. तो इक्वेशन 1 लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, प्लस इक्वेशन 2 लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. इसको ऐड करते हैं तो x प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स इज 2x, ये y कैंसिल हो जाता है. 14 प्लस 2 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू 8. तो हियर वी एलिमिनेट दिस y, एलिमिनेट y जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो गया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x. अभी x का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 2 एनीवेयर कहाँ पे भी हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. मोस्टली जो पॉजिटिव साइन वाला इक्वेशन है वो कंसिडर करो. सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में अभी वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. तो इक्वेशन 1 हम लोग वापस लिखते हैं यहाँ पे, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 माइनस 8, मतलब y इज इक्वल टू 6. एंड लास्ट में वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन इन अ राउंड ब्रैकेट. x वेरिएबल पहले लिखते हैं एंड y वेरिएबल बाद में लिखते हैं. दिस इज द आंसर. सो सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज 8 6, मीन्स x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 6 है. सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड. नाउ द सेकंड मेथड इज सब्सटीट्यूशन मेथड. लेट अस सी दैट मेथड. बिफोर दैट लेट अस सी दिस जनरल form of linear equation in two variables. उसका जनरल फॉर्म क्या है वो हम लोग को पता होना चाहिए. सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म. इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म. यानी सपोज इक्वेशन इज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 3 एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज 5. So this is a general form of that linear equation in two variable. Now how to solve that equation by substitution method? Let us see. Substitution method. So what is that substitution method? Let us see one example. We have to solve that example by substitution method. For example, 8x plus 3y is equal to 11. This is equation number 1. Write the equation number 1 in Roman. And second equation is 3x minus y. 3x minus y is equal to 2. This is equation 2. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन 2 जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले.
ये जो y का वैल्यू वो निकालते हैं एंड वो वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. सो हियर इन इक्वेशन 2 पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन कंसीडर करते हैं? इन इक्वेशन 2 दिस 3x minus y is equal to 2 and therefore minus y is equal to 2 minus 3x. तो y is equal to 3x minus 2, इसको मैं लिखता हूँ 3, इक्वेशन 3. तो मुझे y का एक वैल्यू मिला. नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. हम लोग 2 को सिंप्लीफाई किया है तो 1 में उसको डालना है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मेथड. सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हमें अभी वो वैल्यू डालना है 8x प्लस 3 इंटू y का वैल्यू डालते हैं 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 11. नाउ सिंप्लीफाई 8x प्लस 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 11. सो 9 प्लस 18 सॉरी 9 प्लस 8 इज 17x is equal to this 11 plus this 6 यानी 17x is equal to 11 plus 6 मतलब 17 again. So x is equal to 1. So we get the value of one of the variable. अभी ये जो वैल्यू आया x is equal to 1, ये y का जो फॉर्मूला हम लोग तैयार किया इक्वेशन 3 इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं. So substitute or put x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में अभी उसको डाल दो. तो इक्वेशन 3 क्या है? y इज इक्वल टू 3x माइनस 2. सो 3 इंटू 1 माइनस 2. सो 3 माइनस 2 y इज ऑल्सो 1. देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज 1 1. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. तो ये सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया. नाउ इन प्रैक्टिस सेट 5.1 वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय दिस सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. जो आपको इजी लगता हो वो मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 5.1. हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y. ये दो वेरिएबल हम लोग को यूज करना है x एंड y. फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. तो कोई भी इक्वेशन यानी उसके साथ का नंबर खाली चेंज करके यू कैन राइट एनी इक्वेशन. तो 5 इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं. देखो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये एक इक्वेशन हो गया. सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. एनी इक्वेशन कोई भी. 4, 3x प्लस 5y is equal to 2, and fifth one 5x plus 2y is equal to 7. So all are the linear equations in 2 variable in the variable x and y. x and y में we can write so many equations. तो यहाँ पे हम लोग को 5 इक्वेशन बोला है. Now question number 2 is there. Here हम लोग इसी बाजू में देखते हैं उसको. question number 2, write any 5 solutions of the equation x plus y is equal to 7. x plus y is equal to 7 दिया है. मुझे ऐसा 5 पेयर ढूंढना है कि जिसमें ये सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए. तो x is equal to 0, y is equal to 7. This is one of the solution. Therefore 0, 7. ये एक हो गया. उसके बाद हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6. इसमें डालो 7 आना चाहिए, यानी इसका सोल्यूशन है 1 प्लस 6 7, 0 प्लस 7. सो 1 6. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5. सो 2 5. दिस इज द थर्ड पेयर. देन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4. तो ये फोर्थ पेयर हो गया 3 4. So we can write so many pairs. Here we have to write 5 solutions. 5 पेयर लिखना है. हम लोग कितना लिखा अभी? 4 लिखा. So x is equal to 4 and y is equal to 3. ये 4 3. This is another pair. ये different हो गया. Then 5 2. So we get so many pairs. So in this way we can write the 5 solutions of that equations. तो ये हो गया 5 solutions of that equation. Now question number 3 is there. Solve the following simultaneous equations. Now in question number 3 we have to solve the simultaneous equation. First equation is, first example, x plus y is equal to 4
तो वाइल राइटिंग द इक्वेशन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y is equal to 1. This is equation number 2. Now we have to solve these equations by elimination method और substitution method. तो हम लोग यहाँ पे substitution method यूज करते हैं। देखो, so from equation number 1, from equation 1, ये जो equation 1 है इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस x, इसको मैं 3 नंबर दिया। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 4 माइनस x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में लिखा 2x माइनस 5 इंटू ब्रैकेट y की जगह पे डालेंगे अभी हम लोग 4 माइनस x इज इक्वल टू 1। सो वी गेट 2x माइनस 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस 5x वी गेट 7x इज इक्वल टू दिस 1 और ये 20 ये साइड में आया तो साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज करना है। सो वी गेट द इक्वेशन 7x is equal to 21, therefore x is equal to 21 divided by 7, so x is equal to 3, we get one of the value। अभी ये जो वैल्यू हम लोग को मिला ये इक्वेशन 3 में y का फॉर्मूला है, ये इसमें डाल दो। तो सब्सटीट्यूट x is equal to 3 इन इक्वेशन 3, जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है उसी में वैल्यू डालना है। So we get y is equal to 4 minus 3, so y is equal to 1 and therefore solution is equal sign डाल के राउंड ब्रैकेट में 3 and 1. So in this way easily we can solve this simultaneous equation by substitution method. Same example हम लोग elimination method से भी solve कर सकते हैं। So some example we solve by that method. So let us see that second example now. In second example equations are given 2x plus y is equal to 5. 2x plus y is equal to 5. This is equation number 1. And second equation is given 3x minus y. 3x minus y is equal to 5. ये दो इक्वेशन मुझे दिया है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, मुझे अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते समय? ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट ऑफ x और y। कोएफिशिएंट यानी उसके साथ में जो नंबर है वो ऑब्जर्व करो, किसका सेम है। x में 2 और 3 है, y में सेम है 1 1, यानी हम लोग y एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी जिसका कोएफिशिएंट सेम है वो वेरिएबल हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, उसका साइन ये प्लस माइनस डिफरेंट रहेगा तो ऐड करो, इक्वेशन सेम रहेगा तो माइनस करो। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 हम लोग ऐड करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल और एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा प्लस दिस, इसमें 2 प्लस 3 इज 5x और ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस y माइनस 5 प्लस 5 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 10 डिवाइडेड बाय 5। तो x का वैल्यू मुझे मिला, y एलिमिनेट हो गया, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। तो अभी क्या करना है, इसमें भी x सब्स्टिट्यूट करो, इसमें या इसमें सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में डालते हैं हम लोग, जिस जहां पे पॉजिटिव साइन है वहां पे डालो। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 और ये बाजू में जाएगा तो माइनस, सो वी गेट 1, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x का वैल्यू 2 और y का 1। So in this way easily we get the solution of that simultaneous equations. तो थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड इक्वेशन क्या दिया है देखो, 3x माइनस 5y
3x minus 5y is equal to 16. This is equation number 1. और सेकेंड है x minus 3y, x minus 3y is equal to 8. तो यहाँ पे देखो अभी x का कोएफिशिएंट डिफरेंट है, y का भी डिफरेंट है, तो किसी एक का तो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो ही एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं फिर, लेकिन सब्स्टिट्यूशन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यही इसका कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को क्या करना है, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 नंबर, यानी 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24। ये इक्वेशन 3 हो गया। अभी ये 2 यहाँ से एलिमिनेट हो गया। हम लोग ये दोनों सॉल्व करना है अभी। तो ये फर्स्ट और थर्ड में किसका कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है और इनका साइन भी सेम है। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 पहले लिखना है मुझे, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 माइनस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। वाइल सब्ट्रैक्टिंग वी हैव टू ऐड, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का सभी साइन चेंज करना है, ऐसे यहाँ पे लिखना है 3x और माइनस 3x गेट कैंसल, माइनस 9 प्लस 5 वी गेट माइनस 4y इज इक्वल टू 24 में से 16 गया कितना 8, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल। ये वैल्यू इसी किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सेकंड में डालते हैं हम लोग अभी, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2 में डाल दो। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन ये है, इसमें हम लोगों ने ये वैल्यू डाला। सो x माइनस माइनस 3 2 ज़ा प्लस 6 इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8 माइनस दिस 6, यानी x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आंसर इज 2 minus 2. So this is the answer of the third equation. So in this way we can solve any equation. Now let us see fourth equation. This equation 1 is 2y minus x is equal to 0. This is equation number 1. And second equation is 10x plus 15y is equal to 105. This is second equation. Now you can solve this by elimination method or substitution method. तो यहाँ पे देखो from equation 1 हम लोग substitution यूज करते हैं अभी। From equation 1 2y minus x is equal to 0, therefore minus x is equal to 0 minus 2y, यानी minus x is equal to minus 2y। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x is equal to 2y। दिस इज इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 मिल गया। अभी ये जो वैल्यू है मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूट यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2 में अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 10 इंटू एक्स मतलब 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। तो ये 10 टू ज़ा 20y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। इनका सम करो 35y इज इक्वल टू 105। देयरफॉर y इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 35। सो वी गेट y इज इक्वल टू 3।
तो y का वैल्यू हमें मिल गया 335 3 जा। तो ये वैल्यू इसमें डालो, अभी x का फॉर्मूला है अपना। सो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, जो 3 हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके रखा है x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, सो x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, देयरफॉर सॉल्यूशन और आंसर इज x का वैल्यू पहले लिखना है, y का वैल्यू बाद में लिखना है 6 3। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दैट फोर्थ इक्वेशन। नाउ लेट अस सी सिक्स्थ इक्वेशन डायरेक्टली। 2x minus 7y, 2x minus 7y is equal to 7. This is our equation number 1. And 3x plus y, 3x plus y is equal to 22. This is equation number 2. ये एलिमिनेशन मेथड से अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, x का या y का कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। Here the coefficient of x are 2 3 and y 7 1. So we have to make the coefficient equal. किसी का तो कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा by multiplying some number. तो यहाँ पे अगर हम लोग y को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7y हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7, तो 7 3 जा 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 22, 7 जा 154। दिस इज इक्वेशन 3। अभी ये फर्स्ट और थर्ड जो इक्वेशन है ये मुझे सॉल्व करना है। इसमें क्या देखना है कि कोएफिशिएंट किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। तो x का कोएफिशिएंट तो अलग अलग है, y का सेम है, उनका साइन देखो, साइन अगर सेम रहेगा तो ऐड करो इक्वेशन, डिफरेंट रहेगा तो माइनस करो। तो सेम साइन डिफरेंट साइन है, देखो माइनस प्लस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 अभी हम लोग को ऐड करना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 लिखते हैं 2x minus 7y इज इक्वल टू 7 प्लस दिस 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 154। तो ये 7y कैंसिल हो गए, 21 प्लस 1 वी गेट 23x इज इक्वल टू ये 161। तो x इज इक्वल टू, x का वैल्यू अभी हम लोग को निकालना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 161 डिवाइडेड बाय दिस 23। So we get x is equal to 7, 23 7 जा, we get this one. Now substitute this value, we get one of the variable, यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया। Now substitute x is equal to 7 in equation 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, या 1 में करो, कोई भी इक्वेशन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। So 3x प्लस y इज इक्वल टू 22, दैट इज द इक्वेशन 2 हम लोगों ने लिख लिया। सो 3 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 22। तो सिंप्लीफाई करते जाओ, 3 7 द 21 प्लस वाई इज इक्वल टू 22, वाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड माइनस दिस 21, सो वाई इज इक्वल टू 1। सो आवर आंसर इज x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 1। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व any equation, simultaneous equation by elimination method or substitution method. So friend, here that practice set 5.1 is completed. In this we studied that linear equation in two variable and how to solve that linear equation in two variable by substitution method and elimination method. If you have any doubt in this method or in this practice set, then write in a comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please press the like button and never forget to subscribe the channel so you will get the upcoming videos, and share these videos to your friends. Thank you.